Hey guys, welcome to our channel Defense Your Shots. So in today's video session we are going to cover some most important current affair question which are important for your defense examination like NDA, Air Force, X and Y Group, Navy, AA and SSR and other defense exams like AFCAT and CDS. You can expect around 15 to 16 question in current affair section in NDA examination and from this session you can also expect question in your examination. I will cover the most important current affairs which are going to be asked in your examination. So let's jump to our first question, which is which city has been declared as water plus city. water plus city किसे declare किया गया है? इंदौर, जयपुर, भुवनेश्वर and चेन्नई. So here the correct option will be इंदौर, which is in मध्य प्रदेश. Okay. नाउ इंडिया की जो क्लीनेस्ट सिटी, इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का खिताब भी मिला हुआ है इंदौर को. उसे ही इंडिया की पहली वाटर प्लस सिटी का खिताब भी मिल चुका है अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021. जो सर्वे चल रहा है हमारा, उसी के अंडर इंडिया की पहली सिटी बनी है, वाटर प्लस सिटी बनी है. जो कि ये वाटर प्लस सिटी की कैटेगरी भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 सर्वे के अंदर पहली बार ही इंडक्ट की गई है और इसी के अंदर इंदौर पहली सिटी बनी है जिसे वाटर प्लस सिटी का खिताब मिला. और वाटर प्लस सिटीज़ वो सिटीज़ होती हैं जहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होता है. वाटर ट्रीटमेंट, वाटर का ट्रीटिंग अच्छे से किया जा रहा है. मेनली आप कह सकते हैं कि वाटर क्लीनलीनेस पे ध्यान दिया जा रहा है. ओके, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is which day will be remembered as partition horror remembrance day every year. किस डेट को हम पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे को ऑब्जर्व करेंगे हर साल. सो इट और रिसेंटली और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड दैट on 14th of August we will be observing 14th of August as partition horror remembrance day. Now this day is going to remind us the sacrifice and struggle of our people during the partition of India and Pakistan, which has done during the partition of India and Pakistan. Okay, and this day is going to remind us that we need to remove the poison of social division, disharmony. Means जो हमारी जो हमारा जो सोसाइटी जो बटी हुई है उसको एक साथ लाना है और हमें अपनी सफलता की तरफ बढ़ना है. जैसे सोशल हारमोनी, स्पिरिट ऑफ वननेस को स्पिरिट ऑफ वननेस लानी है, ह्यूमन एम्पावरमेंट करना है. सो टू remind us about the poison of social division, disharmony, this we are going to observe 14th of August as partition horror remembrance day. Okay, so let's move to next question, which is recently 4 more Indian sites have been recognized as wetlands of international importance under Ramsar Convention. So Ramsar Convention के अंदर जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की जो लिस्ट है उसके अंदर 4 इंडियन साइट्स को, जो 4 इंडियन साइट्स हैं उनको इंडक्ट किया गया है. वो कौन से स्टेट्स हैं? सो हियर द आंसर विल बी हरियाणा एंड गुजरात. 2 तो हैं हरियाणा से और 2 ही हैं गुजरात से. 2 सिटीज़, 4 सिटीज़ को इंडक्ट किया गया है रामसार साइट के अंदर और 2 हैं हरियाणा से और 2 हैं गुजरात से. ओके, और ये इन वेटलैंड्स इनके ऐड होते ही इंडिया के पास नाउ इंडिया हैज़ 46 रामसार साइट्स. बिफोर दिस इंडिया हैज़ ओनली 42 साइट्स एंड इंक्लूडिंग दीज 4 now India has 46 Ramsar sites and these are Sultanpur National Park which is in Haryana, Bindwas Wildlife Sanctuary which is also in Haryana, Thol Lake Wildlife Sanctuary which is in Gujarat, or Vadmana Wetland which is also in Gujarat. These are important questions which are going to be asked in your exams. Okay, so remember these points. They can ask you in the match the following question or some other question. This is how wetlands look like. Okay, now let's see what wetlands actually are. Wetlands हम इन्हें दलदलीय इलाका बोल सकते हैं. wetlands वो दलदलीय इलाका होते हैं. Okay, so wetlands are land areas that are saturated, या तो saturated होते हैं या flooded होते हैं with water, इधर या तो permanently होगा या seasonally होगा. अब inlands को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है. एक तो इनलैंड वेटलैंड्स और एक होता है कोस्टल वेटलैंड्स. इन 2 के अंदर डिवाइड किया गया है. अब इनके आपसे इनके एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एग्जांपल है जो इनलैंड वेटलैंड का एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल है जो कोस्टल वेटलैंड का एग्जांपल है. और एक कैटेगरी और होती है मैन मेड वेटलैंड्स. ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी है. ओके,
नाउ इनलैंड वेटलैंड्स इंक्लूड करता है मार्शेज, पॉन्ड्स, लेक्स, फेंस, रिवर्स, फ्लड प्लेन्स एंड स्वैम्प, ये सारे आते हैं इनलैंड वेटलैंड के एग्जांपल। और कोस्टल वेटलैंड्स के अंदर वी कैन इंक्लूड सॉल्ट वाटर मार्शेज, ईस्चुरीज, मैंग्रोव्स, लगून्स and even coral reefs. We can include these in coastal wetlands. Now most importantly, fish ponds, rice paddies and salt pans are man made wetlands. इनके बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, इनके एग्जांपल दे देंगे कि भाई कौन सा इनलैंड वेटलैंड है, कौन सा इनलैंड वेटलैंड नहीं है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वेटलैंड्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, why we have signed Ramsar Convention for the conservation of wetlands, so that as you all know that wetland provide us a wide range of important resources such as water, food, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के हेल्प में आते हैं, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर हमारे ये काम में आते हैं, फ्लड मॉडरेशन के काम में आते हैं, हमारे इरोजन कंट्रोल एंड क्लाइमेट रेगुलेशन के काम में आते हैं ये हमारे। इसलिए ये देखो कितने सारे रिसोर्सेज, मोस्टली रिसोर्सेज हमें वेटलैंड से मिलते हैं, तो क्यों ना कंजर्व किया जाए। दे आर इनफैक्ट मेन सोर्स होते हैं, हमारी जो फ्रेश वाटर सप्लाई होती है उसके मेन सोर्स होते हैं। वेटलैंड्स क्या होते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए हम 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं। ओके और 2 फेब को इसलिए चुना गया था वर्ल्ड वेटलैंड डे क्योंकि इसी डेट को जो हमारा जो कन्वेक्शन ऑन वेटलैंड हुआ था उसे भी क्या किया गया था, उसको एडॉप्ट किया गया था 2 फेब 1971 के अंदर, जो रामसार सिटी है ईरान की, वहाँ पे इसको एडॉप्ट किया गया था, सो दैट वी कैन क्रिएट ए ग्लोबल अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट अवर वेटलैंड्स। नाउ व्हाट इज रामसार कन्वेक्शन? रामसार कन्वेक्शन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि 171 कंट्रीज़ के द्वारा साइंड की गई है, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट वेटलैंड। इसको ये जो रामसार कन्वेक्शन है इसका नाम भी रामसार, जो ईरान की जो सिटी रामसार है उसके बाद में ही रखा गया क्योंकि ये वहाँ पे ही साइन किया गया था, इसलिए इसका रामसार कन्वेक्शन नाम रख दिया गया। एंड रामसार कन्वेक्शन एक ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है जो कि बनाया गया था सो दैट वी कैन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेटलैंड्स। और रामसार कन्वेक्शन को मैंने पहले भी बताया आपको, कन्वेक्शन ऑन वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और इट का एम है ताकि डेवलप कर सके हम एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड फॉर देयर कंजर्वेशन। ओके, दिस वाज ए इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये करंट अफेयर का तो है ही, प्लस इसके अंदर ये जीके का क्वेश्चन भी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बनता है एक, इसलिए ये डबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is one liner and this question is what is the theme of Independence Day 2021? जो 2021 हमने जो 2021 का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया उसकी थीम क्या थी? सो दिस ईयर द थीम वाज नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट वाज द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2021। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is again a very important question। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर के सेक्शन में एक अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ओलंपिक से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसको रीनेम्ड किया गया है, उसका जो रीनेम्ड किया गया है वो क्या किया गया है। सो रिसेंटली और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस किया था कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोला जाएगा। मेजर ध्यानचंद जो एक हमारे हॉकी के लेजेंड प्लेयर हैं उनके नाम से जाना जाएगा इस अवार्ड को, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, और खेल रत्न अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, एंड ये अवार्ड तभी मिलता है जब कोई प्लेयर अपने 4th ईयर के करियर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ओके, इस अवार्ड के अंदर एक मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, और केस प्राइज मिलता है 25 lakhs का। ओके, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट ओवर हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को द विजर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडिया के फील्ड हॉकी के प्लेयर हैं, और इनकी वजह से इंडिया ने 7 out of 8 ओलंपिक्स जीते हैं बिटवीन 1928 to 1964। नाउ यू कैन इमेजिन दैट हाउ इम्पोर्टेंट और ग्रेट प्लेयर ही वॉज। ही अर्नड 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। 1928 का जीता है, 1932 का जीता है, 1936 का इन्होंने जीता है। ओके, एंड नाउ वी आर विनिंग ओनली 1 गोल्ड मेडल। ओके,
एंड वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं 29 अगस्त को, वो भी इन्हीं की बर्थ डेट के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, so this was all about our session today. For today, from the next session we are going to continue with this current affairs series only. At last I will say like, share and subscribe to our channel. Thank you.